Hello students. Next we will move on the next topic in electromagnetic induction. Students, in the previous videos you have completed some topics related to electromagnetic induction, and these topics are: firstly, we have completed the introduction of electromagnetic induction. What is electromagnetic induction? We discussed on the definition of electromagnetic induction. After that we goes on the Faraday laws, Lenz laws, and the direction of magnetic field and induced EMF. How can it generate? And after that, very important topic today we will discuss on the electromagnetic induction. Very important topic, beta. Mostly I can say that one or two questions may be asked on this topic, and this topic is eddy current. This topic is eddy current. Eddy current. Actually, you have heard about the two types of current. Two types of current, AC and DC. Alternating current and direct current. But here is third name, eddy current. Eddy current, actually beta, if you want to ask that ki sir, eddy current is a type of AC or is a type of DC, let me discuss on this question laterly after this video or at the end of this video, because in the starting when I will tell you that what is eddy current, what are its application, maybe probably you alternate know what type of this current. आपको शायद पता चल जाएगा कि ये कौन सा type of current है. So let me discuss the eddy current. Actually beta, eddy current means, eddy means, firstly we goes to the meaning, vocabulary meaning. Eddy means होता है whirlpool. What do you mean by whirlpool? चक्रवात. कई बार अगर आप किसी नदी नहर के पास गए हों तो जो ही वो नदी नहर ब्रिज के नीचे से निकलती है तो ब्रिज के पिलर की वजह से उसमें है ना चक्कर बन जाते हैं. चक्रवात, घेरे, पानी का घेरा देखा हो, हवा का बवंडर देखा हो, चक्रवात. तो इस तरीके से इस फॉर्म में हम इसको क्या बोलते हैं? एडी करंट. ठीक है, एडी का मतलब समझ में आ गया. अब एडी का मीनिंग समझ में आ गया तो एडी करंट होता क्या है? क्या होता है एडी करंट? जब हम किसी भी कंडक्टर को, किसी भी बल्ब पीस को एक ऐसे फील्ड में रख दें, मैग्नेटिक फील्ड में, whose value is always change with the time. Means we can say that if we put a bulk piece in the presence of changing magnetic field, if we put a bulk piece in the presence of changing magnetic field, then an electric current induced in it, and this current is called eddy current. This is the definition of eddy current. When we put a bulk piece, when we put a bulk piece in the presence of changing magnetic field, then an electric current induced in it. This current is called eddy current. This current is called eddy current. Now again I want to repeat my statement which I have repeated in the previous lectures or previous videos. What was that statement and what is this statement? This statement is, again I am repeating, but listen carefully. When we change magnetic field, then there is production of magnetic flux. यानी कि we can say that there is change in magnetic flux. Change in magnetic flux.
and if change in magnetic flux occur, then production of induced EMF, and if induced EMF produce, then we can say that induced current EMF. ये 4 स्टेप है बेटा, ये स्टेप आपको याद कर लेने हैं। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो क्या चेंज होगा? फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स किसके इक्वल होता है? बी ए कोस थीटा के, है ना। अब बी चेंज किया तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा डी फाई बाई डी टी, और ईएमएफ बनेगा तो हम कहेंगे करंट भी बनेगा भाई। आई इज इक्वल टू ई बाई आर, पोटेंशियल बाई रेजिस्टेंस। पोटेंशियल बाई रेजिस्टेंस कौन सा वाला था? ओम्स लॉ। तो हम कहेंगे यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट भी बनेगा। और जो ये इंड्यूस्ड करंट है, दिस इंड्यूस्ड करंट इज आल्सो कॉल्ड एडी करंट। दिस इंड्यूस्ड करंट इज आल्सो कॉल्ड एडी करंट। सो वी कैन से दैट एडी करंट becomes equal to I is equal to E by R and E is equal to minus of d phi by dt divided by R. So we can say that eddy current is equal to minus of 1 by R d phi by dt. This is your relation for the eddy current. I is equal to minus 1 by R d phi by dt. Here R is resistance, phi is change in flux and dt change with respect to time. How much time? How much flux change in how much time? तो ये बेटा एडी करंट की डेफिनेशन और ये इसके लिए रिलेशन आ जाएगा I is equal to minus of 1 by R d phi by dt. क्लियर? आपकी जो SI यूनिट है वो सेम ही होती है, एम्पियर रहेगी एडी करंट के लिए। अब जो ये एडी करंट हमने पढ़ा है, डेफिनेशन कर ली है, ये एडी करंट बेटा यूज कहाँ पे होता है? क्या इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट है या कोई इसके एप्लीकेशंस हैं? तो इसके हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं और इसके एप्लीकेशंस भी हैं। हमने इसको यूज भी किया अपनी जनरल डे लाइफ में कि कहां कहां पे हमने इसको यूज किया है, तो मैं एप्लीकेशन भी करवाऊंगा। उससे पहले जहां पे ये हार्मफुल है तो हम इसको क्या करना चाहेंगे? कम करना चाहेंगे ना। हार्मफुल है तो क्या करना चाहेंगे? कम करना चाहेंगे। तो कई बार आपका बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ कैन वी रिड्यूस एडी करंट। क्वेश्चन है हाउ कैन वी रिड्यूस एडी करंट। तो देखो बेटा हम एडी करंट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी बल्क पीस में, जो बल्क पीस में प्रोड्यूस हुआ है हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज, हाउ कैन वी रिड्यूस, क्वेश्चन इज दिस, हाउ कैन वी रिड्यूस द एडी करंट। Listen, let's say we have this is North Pole and this is South Pole. North Pole है, South Pole है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई हमने बल्क पीस ऑपरेट कर दिया, लटका दिया भाई, कोई भी बल्क पीस है ये। और हाँ एक बात सुन लो, ये बल्क पीस मान लिया रोटेट कर रहा बेटा, कभी इस तरफ जा रहा है तो कभी इस तरफ आ रहा है, ठीक है, मूव हो रहा है तो इसका एरिया चेंज होएगा ना मैग्नेटिक फील्ड के विद रिस्पेक्ट टू, और एरिया चेंज होगा तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो वो चेंज हो रही है टाइम के साथ, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो हम कहेंगे फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा तो हम कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा तो हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और इंड्यूस्ड करंट इज ऑल्सो कॉल्ड द एडी करंट। सो वी कैन से दैट इन दिस बल्क पीस एडी करंट प्रोड्यूस व्हेन सम बल्क पीस इज प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब वो चेंज कर रहा है, क्लियर होगी। तो अब इसके अंदर जो एडी करंट प्रोड्यूस होता है बेटा, वो एडी करंट प्रोड्यूस होता है ऐसे सर्कल फॉर्म में, एडीज की फॉर्म में। इस तरीके से फॉर्म प्रोड्यूस होता है। ये इस तरीके से एडी करंट इसमें रिप्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस होता है। अब एडी करंट का जो मेन रीजन होता है, मेन रीजन ये होता है एडी करंट एक ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है बेटा, ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इफ देयर इज प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट इन दिस डिवाइस, देन it will be harm or it will be heat up in small time, it will be heat up in small time। अगर वो हीट अप हो जाती है थोड़े से टाइम में तो हमें क्या करना पड़ेगा? एडी करंट को कम करना पड़ेगा ताकि वो कम गर्म हो। अब एडी करंट को कम कैसे किया जाता है? अगर ये सेम केस मैं ऐसे ले लूं,
ये बल्क पीस अब की बार कुछ ऐसे कर दिया मैंने, बताओ क्या किया है, शाबाश। यानी कि ये मैंने इसमें से कुछ स्लाइसिस निकाल दी, ये इस तरीके से स्लाइस निकाल दिया, स्लाइस निकाल दिया तो इसका देखो एरिया कम हो गया, ठीक है, एरिया कम हो गया ना। ये देखो यहां से एरिया, अब ये जो ये जगह है ये खाली है, यहाँ पे मटेरियल है ही नहीं, यहाँ पे मटेरियल नहीं है बेटा, यहाँ पे और यहाँ पे मटेरियल नहीं है, क्लियर होगी। अब एडी करंट कैसे बनेगा, एडी करंट कुछ ऐसे जाएगा, सर्कल चाहिए उसको तो पूरा ये ऐसे होता हुआ ऐसे जाएगा। अब एडी करंट को कंप्लीट एक साइकिल करने के लिए टाइम क्या लगेगा, ज्यादा टाइम ज्यादा लगेगा तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा कम, और हम कह सकते हैं कि एडी करंट इस केस में रिड्यूस हो जाएगा, एडी करंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस। क्लियर होगी बेटा बात। तो इसका मतलब हम एडी करंट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, जो हमारे पास एरिया है उस एरिया को क्या कर दिया हमने, कम कर दिया, स्लाइसिस निकाल दी, इस तरीके से कम कर दिया कि मतलब ज्योमेट्री की जो शेप है वो डिस्टर्ब भी ना हो और हमारे पास एरिया क्या हो जाए, कम हो जाए। क्लियर होगी बात ये, डन। तो अब आप लिख लो इसको, एडी करंट को हम कैसे कम कर सकते हैं, ये फिगर बना लेना भाई, डायग्राम जरूरी है बनाना। ये ओरिजिनल है, फिर ये हमने एडी करंट कम करने के लिए यानी कि उसका इफेक्ट कम करने के लिए हमने क्या किया, उसका एरिया को रिड्यूस कर दिया, डन। तो आप इसको वर्डिंग में भी लिख सकते हैं बेटा, जो मैंने अभी आपको हिंदी में भी बता दिया है, बाकी आप लिख लो, मैं लिखवा देता हूं, 2 लाइनें हैं इसमें। बाय रिड्यूसिंग, आंसर मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूं, बाय रिड्यूसिंग एरिया वी कैन रिड्यूस एडी करंट because in this case it will take more time to complete a cycle and production of heat is small. So we can reduce the effect of eddy current. So we can reduce the effect of eddy current. क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो बेटा मैंने ये आपका डिस्कस कर लिया। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हो तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मिल जाएगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट टॉपिक वी विल मूव ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। व्हाट आर द एप्लीकेशंस? Applications of eddy current. स्टूडेंट्स, आपने बेटा लैब में गए हो, आप 11th में लेके गए हैं हम आपको, 11th में तो लैब में चले गए, पर 12th की लैब अभी बेटा बाकी भी है, और पता नहीं कब आपको लैब के भी दर्शन होंगे, स्कूल के दर्शन होंगे, वो तो पता नहीं है। पर लैब में जब हम जाते हैं तो लैब में एक डिवाइस होती है, शायद आपने 10th क्लास में भी देखा हो, गैल्वेनोमीटर। हैव यू सीन और हैव यू हर्ड दैट गैल्वेनोमीटर? अब गैल्वेनोमीटर का यूज अगर आपने ओम्स लॉ में किया हो, वहां पे ओम्स लॉ में किया हो, तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होती है ना बेटा, गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग होती है वो बीच में 0 होती है, और फिर इस तरफ 30 तक जाता है और इस तरफ 30 तक जाता है, मिली एम्पियर होता है। तो 0 से जब हम उसको मेजरिंग करते हैं तो उसकी जो नीडल होती है, नीडल वो डिफ्लेक्शन में रहती है, एक जब पर्टिकुलर रीडिंग के ऊपर रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि एसी यूज करते हो आप, एसी यूज करते हैं तो उसमें जो अल्टरनेटिंग करंट होती है उसके में अंदर फ्लक्चुएशन होती रहती है। उन फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए टू फाइंड द एग्जैक्ट रीडिंग इन द गैल्वेनोमीटर, टू फाइंड द एग्जैक्ट रीडिंग इन द गैल्वेनोमीटर, व्हाट यू वांट टू डू? अब हमें क्या करना पड़ेगा? हम चाहते हैं कि वो एक रीडिंग पे फिक्स हो जाए, एक रीडिंग पे फिक्स हो जाए तो हम वहां पे यूज कर लेते हैं एडी करंट का।
क्यों? एडी करंट क्या होता है? एडी करंट भाई जो हम बाहर से एक्शन करते हैं, इफ वी वांट टू इंक्रीज करंट, एडी करंट उसको रिड्यूस करना चाहेगा। इफ वी वांट टू डिक्रीज करंट, एडी करंट उसको इंक्रीज करना चाहेगा। मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ मैं आपको बता ही चुका हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो ऑलवेज अपोजिट वर्क करेगा जो हम कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज नहीं होने देगा, डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज नहीं होने देता। सेम काम एडी करंट भी करेगा क्योंकि वो प्रोड्यूस ही उसकी वजह से हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर वहां पे करंट इंक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीज नहीं होने देगा, डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज नहीं होने देगा। मींस वी कैन से दैट कि जो वो नीडल है, नीडल एक पॉइंट पे फिक्स हो जाएगी। इसलिए हम उसको बोलते हैं, जिस जब वो गैल्वेनोमीटर जो है कि फिक्स रीडिंग देता है उसको हम डेड बीट गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। तो टू फॉर्म डेड बीट गैल्वेनोमीटर, बेटा मैं इसको एक्सप्लेनेशन लिखवाऊंगा नहीं, मैं हिंदी में ही सभी एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन करूंगा और आप उसको ध्यान से सुन लेना। यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स अबाउट दीज एप्लीकेशंस। मैं आपको बस एक्सप्लेनेशन दूंगा और पॉइंट लिख दूंगा यहाँ पे कि इसमें यूज हो रहा है। टू फॉर्म डेड बीट गैल्वेनोमीटर, डेड बीट गैल्वेनोमीटर मेरे ख्याल में अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिसके अंदर वाइब्रेशन ज्यादा ना हो, बस एक ही फिक्स पॉइंट के ऊपर हमें वो रीडिंग दे दे, वो क्या होते हैं? डेड बीट गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फर्नेस। इलेक्ट्रिक फर्नेस क्या होती है? फर्नेस क्या होती है बेटा? भट्ठी होती है जिसमें हम मटेरियल्स को क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं, या इंडक्शन फर्नेस भी बोल देते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फर्नेस या इंडक्शन फर्नेस। अब इसके अंदर क्या होता है? चारों तरफ एक रूम फिक्स होता है, उस रूम की दीवारों के ऊपर वो दीवारें हैं जो उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता रहता है? चेंज। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? एडी करंट। एडी करंट प्रोड्यूस होगा तो मैंने बोला था एडी करंट एक ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। हीट प्रोड्यूस होगी तो उस हीट की वजह से जो अंदर रखा हुआ और है मटेरियल है वो सारा क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। तो भाई हम उसको प्योरीफाई भी कर सकते हैं, या उसकी जो लिक्विड स्टेट होती है जहां पे भी यूज करना होता है बेटा वो उसको यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन किसमें हो गया? इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर। नेक्स्ट है भाई थर्ड एप्लीकेशन, दिस इज स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर ऑटोमोबाइल्स के अंदर आप देखते होगे बेटा, आपके घर में जरूर बाइक, कार और स्कूटी वगैरह होंगी, तो उनके अंदर जब हम वो चला रहे होते हैं या हम बैठे होते हैं, हमें पता होता है कि भाई ये अब इतनी स्पीड के ऊपर चल रहा है, तो वो स्पीडोमीटर भी किस पे एक्शन पे है? वो भी किस पे है? एडी करंट पे रिपीटेड है, क्योंकि उसके अंदर बेटा कॉइल्स होती हैं। इन कॉइल्स वाला पॉइंट मैं नेक्स्ट से भी रिलेट कर दूंगा। कॉइल्स होती हैं, आपने देखा होगा 5-6 खाने होते हैं, उनमें से जो पहले वाला खाना होता है राइट हैंड की तरफ वो जल्दी जल्दी रोटेट होता है, फिर उससे वाला वो थोड़ा सा लेट और लेट और लेट। तो इसका मतलब वो हर एक जो रोटेशन है वो बंदी होती है किसकी वजह से? एडी करंट की वजह से रोटेट होती रहती है, क्योंकि मोशन की वजह से क्या होगा? कॉइल होती है, एक ड्रम सा टाइप फिक्स होता है वहां पे, उसमें मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहता है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो एडी करंट की प्रोडक्शन होगी, एडी करंट की प्रोडक्शन होगी तो वो कॉइल्स भी आपकी रोटेट करती रहती है स्पीडोमीटर के अंदर। इसी बेस पे अपना चौथा एप्लीकेशन भी निकल के आ जाता है, इलेक्ट्रिक मीटर्स। इलेक्ट्रिक मीटर्स में भी जैसे आप रीडिंग देखते हो कई बार कि हमारे मीटर ने भाई कितनी रीडिंग्स दी हैं, तो वो जो रोटेशन होती है वो रोटेशन भी किसकी वजह से होती है? एडी करंट की वजह से ही होती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है भाई फिफ्थ एप्लीकेशन, वो है आपका इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। ट्रेन के अंदर यूज होता है ये इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स क्या होता है? जो व्हील होता है ट्रेन का, व्हील जैसे व्हील आपका वर्टिकल खड़ा है, उसके साइड में ही एक ड्रम होता है, उस ड्रम के अंदर मैग्नेटिक कॉइल रखी जाती है। मैग्नेटिक जो ही रोटेशन बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो जो ही हम उस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने का लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई होते ही व्हील के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? एडी करंट। और वो एडी करंट उसकी मोशन का क्या करेगा? अपोज। व्हील आगे की तरफ चल रहा था वो अपोज करेगा, अपोजिशन की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। हेंस वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक ब्रेक्स अप्लाई। बेटा जो ये एप्लीकेशंस मैं करवा रहा हूं, ये एप्लीकेशंस आप प्रदीप्स में या एनसीईआरटी में विद डिटेल आप पढ़ सकते हो, विद डिटेल आप पढ़ सकते हो। मैं आपको हिंदी में उनका एक्सप्लेनेशन और हिंदी में उनके जो यूजेस हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, डैम्पिंग और अनडैम्प्ड दो वर्ड आए थे 11th में, डैम्प्ड और अनडैम्प्ड। डैम्प का मतलब क्या होता है, कम होना, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई फील्ड है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। डिक्रीज कौन करेगा, एडी करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, गैल्वेनोमीटर में भी यही यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो जहां पे हम इसको यूज करना चाहें वहां पे यूज हो जाएगा इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में। अब देखो भाई नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूं बेटा। तब तक आप एडी करंट वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने स्पेशल एक वीडियो इसी को दी है। तो एडी करंट के बारे में आप अच्छे से डीपली पढ़े और कोई डाउट होगी तो आप वो मेरे से ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।